Bismillahirrahmanirrahim. So we resume after Eid holidays our series of lectures on clinical optics in ophthalmology, basics and advanced, and we are going through part 6 of this series. And with your help, let's revise what we have done so far. In the part 1, we discussed very basic things like reflection and refraction and Snell's law and their clinical applications. Then we had the concept of lenses and mirrors and how does the schematic presentation of light with the help of a ray which travels from left to right. And then the concept of vergence and positive vergence and negative vergence and zero vergence, followed by vergence formula. And before that we had discussed the relationship of focal length and meters to power and diopters. They are inversely proportional to each other. And with help of that focal length and diopter relationship formula and with the vergence formula, we can calculate and trace the image of any object after passing through a length of known power and vice versa. Then we started our discussion, moved from that concept of vergence to refractive errors. We discussed myopia, hyperopia and their tracing. Then we had the concept of schematic eye, that we merge the power of the lens and cornea and make it one plane. And we also discussed that by drawing simple lines, we can simplify the discussion of the optics. And then the discussion extended to formation of image, concept of emmetropia, far point and near point. And then in the terms of far point, we discussed the refractive errors again. And we also saw that with the calculation of the vergence, we can calculate the refractive error. And then we had the concept of error lens. That's a kind of lens which kind of power which an eye is either over or under. And then the error lens is corrected by the opposite power lens, which is actual refractive error which we are used to see. And we have discussed the concept of transposition as well. And then we came to astigmatism, and we discussed that astigmatism is a meridional difference of power. If some surface or a lens has the same power in all the meridians, the surface is spherical. And classically we discuss the meridians 90 degrees apart, and if they are same, we assume all other meridians are also same, though the real life scenarios may differ from our schematic assumptions which we have made. And if 90 and 180 degrees meridian are of same power, then that surface is spherical. And if the power of 90 degrees meridian is different from 180 degrees meridian, then it's a spherocylindrical surface. And we saw that the astigmatic lens affects only the rays which are coming perpendicular to its axis. The rays coming to parallel to the axis of the cylinder will pass undeviated, and it forms point focuses, and ultimately a line is formed parallel to the axis of the cylinder. So a vertical cylinder will form a straight vertical line and a horizontal cylinder will form a horizontal line. So once the spherocylindrical combination is here, the point focus will not form on the screen or on the retina. Instead of a point focus, there will be a line which will focus in front
and a line behind, depending upon the power of the cylinders, and in between there will be a different sizes of oval or round circles, and the circle at which the size is minimum lies just between these two lines, and that can be calculated with knowing the power of the cylinders. Location of that circle is also definable. That's known as circle of least confusion. And then we discuss the conoid of Sturm and how to collapse a conoid of Sturm for astigmatic refraction. We discussed two methods. One was retinoscopic method, and in retinoscopic method you place one line by placing a sphere in front of the eye. You place one line on the retina and then you pull back or push back the other line on the retina. Whereas in Jackson cross cylinders method, you place the circle of least confusion on the retina by adding spherical equivalent of that equation. So in Jackson cross cylinder method, the circle of least confusion always remains on retina. And then you, by flipping the cross cylinder in front of the eye with power of plus and minus cylinders in the same lens, the spherical equivalent of the Jackson cross cylinder is always 0, and it is combination of two cylinders with opposite signs and axes. So if by flipping the cross cylinder, we keep on collapsing, bringing the lines nearer to each other, and when the lines come nearer to each other, the circle of least confusion decreases in size, and ultimately it collapses and a point focus is formed. So this is a little summary of what we have discussed. Alhamdulillah, I was able to recap at least. So today's topic is astigmatic refractive error, types of astigmatism. We have discussed it already. Compound myopic astigmatism is in which the whole conoid is lying in front of the retina. Both the lines are in front of the retina. If both the lines are in front of the retina, automatically the circle of least confusion will also be lying in front of the retina. Simple myopic astigmatism is in which one line is in front of the retina and the other one is on the retina. And mixed is one line behind and one line in front, and the circle of least confusion is on the retina. And simple hyperopic astigmatism, one line is on the retina, the other one lies behind, and a compound hyperopic, whole conoid lies behind the retina. So if we know the refraction of the patient, we can judge which kind of astigmatism the patient has. To determine astigmatism type, express the refraction in both plus and minus cylinder formats. That's the concept of transposition. Note the sign of the sphere component in each format together. They indicate the type. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप उसको दोनों शेप्स में इक्वेशन को लिखें ट्रांसपोज करके सिलेंडर की. तो अगर दोनों में स्फीयर सेम साइन का आता है तो वो माइनस माइनस है दोनों स्फीयर, तो कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है. माइनस प्लेनो है तो सिंपल मायोपिक है, प्लस माइनस है तो मिक्स्ड है, प्लस प्लेनो है तो सिंपल हाइपरोपिक है, और प्लस प्लस है तो कंपाउंड हाइपरोपिक है. ये स्फीयर साइन से क्या मुराद है? नहीं, ये जो कोई भी इक्वेशन होती है उसको हम
स्फेरो-सिलिंड्रिकल कॉम्बिनेशन कोई भी हो तो उसको हम माइनस सिलेंडर से भी करेक्ट कर सकते हैं और प्लस सिलेंडर से भी करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो उन दोनों को जब जमा करते हैं तो वो नया स्फीयर आ जाता है। स्फीयर और सिलेंडर को जमा करके और सिलेंडर की साइन चेंज करते हैं और एक्सेस 90 डिग्रीज अवे कर देते हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। और वैसे भी ये मुमकिन है कि अब लाइनें जो दो हैं तो अब आपकी मर्जी है कि पहले पिछली को ले आए और फिर अगली को पुश कर दें या अगली को पुश बैक पहले कर लें और पिछली को बाद में पुल कर लें। वो थोड़ी सी और पीछे चली जाएगी अगर पुश बैक करेंगे तो। अगर पुल सामने खींचेंगे स्फीयर ऐड करके जो रेटिनोस्कोपिक मेथड है तो सामने वाली और ज्यादा आगे आ जाएगी तो उसको बाद में आप पुश बैक कर देंगे। तो ये तो ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिंपल है। आपको यू कैन डिस्कस विद योर सीनियर्स आफ्टर द क्लास that what is transposition and how does it apply to daily practice. Then you will understand in next slides. It will give examples. माइनस जो आपने लिखा है बिफोर ट्रांसपोजिशन और दूसरा माइनस आफ्टर ट्रांसपोजिशन है। हाँ, अगर वो दोनों माइनस ही आते हैं तो ये कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है और माइनस प्लेनो आता है तो सिंपल मायोपिक है। प्लस माइनस आते हैं तो मिक्स तो दरमियान में रहना ही है और माइनस नहीं आता, वो प्लस प्लेनो आता है तो सिंपल हाइपरोपिक है और दोनों स्फीयर प्लस में आते हैं तो कंपाउंड हाइपरोपिक है। ये सिंपल तरीका है इसी बात को इक्वेशन में एक्सप्रेस करने का। टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म आपने पढ़ ली है तो अब उसको हमने रिलेट कर दिया उसी डायग्राम को कि ये दोनों माइनस माइनस इसलिए आ रहे हैं कि दोनों पूरे का पूरा कोनाइड ही सामने है तो उसकी ट्रांसपोजिशन भी करेंगे तो साइन स्फीयर का माइनस ही रहेगा। सिंपल मायोपिक में एक लाइन ने रेटिना पे रहना है और मिक्स में एक पीछे है एक आगे है, इसलिए जब आप ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वो अगले वाली पीछे चली जाएगी और पिछले वाली आगे आ जाएगी तो इसलिए वो रहेगा मिक्स ही कि उसमें जो इक्वेशन आप ट्रांसपोज करके लिखेंगे एक में प्लस होगा स्फीयर और एक में माइनस आएगा। तो ये स्फीयर की साइन पे आप अपनी इक्वेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं ये किस किस्म का एस्टिग्मेटिज्म है। आमतौर पर जो टर्म हम यूज करते हैं वो सिंपल एंड कंपाउंड ही करते हैं, लेकिन बहरहाल दिस इज अ गुड वे टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट। Determine the type of astigmatism present for each of the following refractions. अब ये आ गई ना जो आपको उलझन हो रही थी, इट विल सेटल नाउ। ये वो इक्वेशन है जो आप ऑटोग्राफ में रोज देखते हैं, +3 -2 at 80. Now we have seen to access के अगर हम इसको प्लस सिलेंडर से करेक्ट करना चाहें, हमने पढ़ा था ये we have discussed there are few phoropters which have only minus cylinders like ours and there are few phoropters which have only plus cylinders. So we can correct the spherocylindrical combination with whatever cylinder we have available by knowing the value of that equation in plus cylinder. तो इसको हम चाह रहे हैं कि आप इसी इक्वेशन को प्लस सिलेंडर में देखें तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे। Simple sum of the equation is the new sphere that will be +1 and change the sign of the cylinder. Cylinder की पावर में कोई फर्क नहीं डालना, change the sign of the cylinder and push the axis 90 degrees away. So this is a new equation. They look different to the patient, but to the knowing eye of an ophthalmologist and an optician or an optometrist, it is the same equation. Looks grossly different. Patient comes to you, डॉक्टर साहब ये देखें, पहले तो डॉक्टर साहब ने +3 दिया हुआ था, आपने +1 कर दिया, तो इतना फर्क हो सकता है? तो दिस इज हाउ इट कम्स कि ये दोनों असल में एक ही इक्वेशन है।
इमेज वहीं पे बनेगा। जब ये पूरी करेक्शन लगाएंगे तो इमेज रेटिना पे आ जाएगा। ये एक ही रिफ्रैक्टिव एरर का, स्फीरोसिलिंड्रिकल रिफ्रैक्टिव एरर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। इसमें आप माइनस सिलेंडर से करेक्ट कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन में आप प्लस सिलेंडर से करेक्ट कर रहे हैं। अब आप रफली देखें, उसको ऊपर वाली को ना देखें, इसकी ट्रांसपोजिशन करें, दोनों को ऐड करें, क्या आएगा अब्दुल्ला? +3, और 2 की साइन चेंज करें -2, और 170 चूंकि 90 से अवे है तो इसमें 90 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो 90 से छोटी फिगर होगी उसमें 90 ऐड कर देंगे, तो इसमें से 90 निकालें 80, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन आ गई। तो you need to understand, because this is a very common concept which you need in your daily practices of ट्रांसपोजिशन। नॉर्मली डेली प्रैक्टिस में ट्रांसपोज करने का डिसीजन ले लेगा। जब मैंने अपने इस फोराप्टर से करनी हो रिफ्रैक्शन, जिसका मुझे पता है कि इसमें है ही सिर्फ माइनस सिलेंडर, तो मैं कैसे प्लस सिलेंडर लगाऊंगा फिर? एक तो ये है, दूसरा आप कभी कभी वैसे भी सिंप्लीफाई भी करते हैं चीजों को, कि आप चाह रहे हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की बजाय कि फॉर एग्जांपल वो इजोट्रोपिया है, अगरचे वो ऑप्टिशियन फिर आपकी बात से डिफर भी कर सकता है, लेकिन हम इजोट्रोपिया होगा तो हम चाहेंगे दोनों चीजें हम प्लस में दे दें। ऐसी नोशन बनी हुई हैं, और कभी हम चाहते हैं कि स्फीयर दे ही ना। फॉर एग्जांपल एक यंग बच्चा है, वो ये इसी रिफ्रैक्शन के साथ आता है और वो आर्थोफोरिक है, तो मुझे पता है कि वो अकोमोडेट तो कर सकता है, तो व्हाई शुड आई प्रिस्क्राइब हिम +3 or why should I prescribe him +2 cylinder? I'll just transpose it into a minus cylinder and will omit +3 and just prescribe -2 at 80 degrees if he is orthophoric. And if he is isotropic, so I'll take this plus equation full and will prescribe. So there are so many things which you will learn the practical implications, but in discussion of optics, it's simple. जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है उसकी रोशनी में, जब हमारे पास है ही माइनस सिलेंडर और प्लस है ही नहीं, तो हमें तो माइनस पे ही लाना है इक्वेशन को, तो इसलिए इसको समझना जरूरी हो गया। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो यू विल हैव अदर implications as well. The spherical component is plus in both plus and minus cylinder format. Therefore, it indicates, असल में तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि दोनों, ये स्फेरिकल कंपोनेंट है पहले वाला, ये दोनों प्लस फॉर्म में है, तो ये कंपाउंड हाइपरोपिया है। अब जल्दी से बोलें आप। -3 +4 into 170, योर मैथ इज क्वाइट गुड। तो इसमें the first sphere is in which form? Plus, and the second equation sphere is minus. तो ये got it? It's a mixed astigmatism. Now आप ही करते जाओ। 9 plus 4 -9 into 180. Again different. Answer mixed astigmatism. -1 -1.5 with into one जरा थोड़ा सा 90 से करना मुश्किल है, तो 38 है जो आप 90 10 100 तो 28 10 38, ये जरा पंजाबी च फायदा है। कंपाउंड मायोपिक हो, सिंपल मायोपिक नहीं है, कंपाउंड मायोपिक। एक्सीलेंट, the boy has got the concept. So it's a compound myopic astigmatism. अब एक और कॉन्सेप्ट है जो एस्टिग्मेटिज्म में हम डिस्कस करते हैं, विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल। पुरानी, बहुत पुरानी, सदियों पुरानी लगता है टर्म है, यूजफुल बिकॉज दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड अदर ऑप्थेल्मिक प्रोफेशनल्स। अगर 90 डिग्री पे प्लस हो तो उसको विद द रूल कहते हैं, और 90 पे माइनस हो तो उसे अगेंस्ट द रूल कहते हैं। सिंपल।
देखिए ये वैसे मैंने बताया ना नोशंस बनी हुई हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूजुअली रिफ्रैक्ट इन प्लस सिलेंडर्स, लेकिन मैं माइनस में प्रेफर करता हूँ। Optometrists often refract in minus cylinders. Opticians think in minus cylinders. So glasses are grown in minus cylinders. मतलब हम अपनी तरफ से जो बड़ा तीर मार रहे हैं कि हमने बड़ी उसको प्लस में लिख के इक्वेशन दी है, तो ऑप्टिशियन की मर्जी है, उसने अपना जो ब्लैंक्स हैं और अपनी सहूलत देखनी है कि उसके लिए ग्राइंड करना किस चीज को आसान है, माइनस को कि प्लस को। उसने इक्वेशन को उसी वक्त कन्वर्ट करके अपने अवेलेबल ब्लैंक्स और मशीन और टूल्स के ऊपर इन्हिसार करते हुए उसके मुताबिक इक्वेशन बना देनी है, उस इक्वेशन को ग्राइंड कर देना है। तो लेंस की फ्रंट सरफेस और बैक सरफेस दोनों की नेट पावर, उसकी पावर असल पावर होती है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, बेस कर्व और फ्रंट सरफेस। तो एक आमतौर पर फिक्स होती है और एक को मॉडिफाई करता है ऑप्टिशियन। तो हमारा जो लेंसोमीटर है, चाहे वो डिजिटल हो या मैनुअल हो, तो वो नेट पावर बताता है आपको, और उसमें भी आप दोनों शेप्स में सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये उसने माइनस सिलेंडर करके बनाया है या प्लस करके बनाया है? नेट तो वही रीड करेगी, आपका इक्विपमेंट तो उसको सही रीड करेगा। तो इसलिए ना, मतलब ये ऑप्टिक्स की गिमिक्स ज्यादा हैं और इनकी रियलिटी उतनी नहीं है। जरूरी नहीं होता कि हमारे ऑर्डर को ऑप्टिशियन ओबे करे। अगर वो माइनस सिलेंडर यूज टू है या उसका उसको उसमें सहूलत है, तो वो वही करेगा। If an ophthalmologist says to a optometrist, "Didn't has a lot of cylinder at 180 degrees," the doctor is thinking in plus lens, but the optometrist doctor is thinking in minus. Each has the opposite impression from her counterpart. But if the MD says this patient has a lot of with the rule astigmatism, both will be on the same page. मतलब उसने कहा जी लॉट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म 180 पे, तो वो तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो अगर कहा इट हैज द पेशेंट हैज अ लॉट ऑफ विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, इसका मतलब है 90 पे प्लस बहुत ज्यादा है। और अगर मैं कहूं a lot of against the rule astigmatism, तो माइनस 180 पे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इनकी मतलब सिर्फ assumptions ही हैं स्कीमेटा की तरह, इसकी कोई इतनी हकीकत नहीं है। आपने तो रिटन कम्युनिकेट करना है ना आमतौर पर। तो जो प्लस है वो इट्स मोर कॉमन। कॉर्निया भी जो है ना, वो उसको प्रोलेट सरफेस कहते हैं। कह रहा है जैसे फुटबॉल, ये फुटबॉल नहीं है, ये अमेरिकी है ना, ये रग्बी बॉल है। रग्बी बॉल डिस्क जैसा होता है, फुटबॉल तो गोल होता है ना, तो उनका फुटबॉल रग्बी है। तो अगर तो फुटबॉल होता तो वो तो स्फीयर है, तो ये रग्बी बॉल है जो स्फीयर सिलिंड्रिकल कॉम्बिनेशन है। तो मैं अक्सर कहता हूँ पेशेंट को समझाने के लिए कि जो ह्यूमन क्रिस्टलाइन लेंस है वो रग्बी बॉल भी बन जाता है और फुटबॉल भी बन जाता है। कि जब वो डिस्क शेप होता है तो उसकी पावर मिनिमम होती है, और जब वो फुटबॉल होता है तो उसकी पावर हाईएस्ट होती है। तो एक रग्बी बॉल पड़ा हुआ है ग्राउंड पे, तो मोर प्लस पावर एट 90 डिग्रीज मेरिडियन, ये वाला जो उसका ज्यादा, जहां से उसका वो पेट निकला हुआ है ज्यादा कर्व्ड है, तो वो ज्यादा प्लस है। और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लेस प्लस है, जिधर को वो ओब्लॉन्ग है, जिधर को ओवल है, वो डिस्क शेप्ड है ना, मोर प्लस है 90 डिग्रीज। तो मतलब एक्सेस मैंने बताया ना कि हम 9180 में बात कर रहे हैं, वो तो एक्सेस तो कोई भी हो सकता है। तो रग्बी बॉल में अगर हम कहेंगे कि जी इसमें विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म ज्यादा है, जबकि उसका 180 हमेशा लेस पावर्ड होगा। और दूसरा इसमें फिर वही बात आ गई है, करेक्टिव जब हम लेंस की बात करेंगे तो हम अपोजिट पे लगाएंगे ना। हमने पढ़ा था कि सिलेंडर 90 डिग्रीज अवे एक्ट करता है।
तो अगेंस्ट अ रूल इज लेस कॉमन। अगर टी के ऊपर फुटबॉल रग्बी बॉल को खड़ा कर दें तो 180 डिग्रीज मेरिडियन उसका ज्यादा फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें जब प्लस ज्यादा हो जाएगा तो अगेंस्ट द रूल कहलाएगा। तो करेक्शन कैसे करेंगे? जस्ट अपोजिट, कि फिर वो प्लस प्लस सिलेंडर 90 पे लगाएं तो वो 180 पे एक्ट करेगा, और माइनस सिलेंडर 180 पे लगाएंगे तो वो 90 पे एक्ट करेगा। कंपेयरिंग एस्टिग्मेटिज्म टाइप्स, तो विद द रूल इज फार मोर कॉमन। 90 पे प्लस कहते हैं लिड का वेट जो होता है ना बाय बर्थ, वो कॉर्नियम को थोड़ा सा 90 पे ज्यादा बेंड कर देता है ओवर टाइम, इस वजह से विद द रूल ज्यादा है, क्योंकि ये मुसलसल फोर्स विद द रूल ही लग रही है ना उस पे, और ये माशाल्लाह बाय बर्थ ही मौजूद है। तो दिस इज वन assumption which is made, टाइट आईलिड हाइपोथेसिस, कि दोनों अपर और लोड करते हैं तो वो वर्टिकल मेरिडियन को स्टीपेंड कर देते हैं, तो दैट गिव्स राइज टू विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। और ये इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा ही परेशानी में पड़ जाते हैं लोग, कि जब वो इसके अगेंस्ट आता है तो वो कहते हैं कि इसमें एक्टेजिया का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि विद द रूल होना चाहिए था, अगेंस्ट द रूल को वो एक साइन ऑफ एक्टेजिया के तौर पर लेते थे ज्यादा। अब तो हम वो इतने अच्छे टेस्ट हमारे पास आ गए हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी की शक्ल में। पहले तो सिंपल कॉर्निया की वैल्यूएशन या तो रिफ्रैक्शन से होती थी या फिर एक प्लेसिडो डिस्क होती थी। एक ऑप्थेल्मोस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सर्कल बने होते हैं, और वो सर्कल जब उसकी लाइट ऑन करते हैं तो वो सर्कल कॉर्निया पे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर एक की होल बना होता है जिसमें से आप देखते हैं, तो थ्रू दैट की होल यू जज दैट वेदर द सर्कल्स आर यूनिफॉर्म all over the cornea or somewhere they are distorted. So then you use to assess that whether the ectasia is there or not, a keratoconus is there or not. So the earliest form of topographers were made on the Placido. They were known as Placido disc based. तो अब भी हैं वो, चलते हैं अभी भी, कि सिंपल टोपोग्राफर जो है एक प्लेसिडो रिंग्स प्रोजेक्ट करता है, और फर्क ये है टोपोग्राफर का कि वो एआई की मदद से कॉर्नियल जो इमेज बनता है उसको कैप्चर भी कर लेता है और एनालाइज भी कर लेता है। तो आपको पता चल गया कि अगेंस्ट रूल एस्टिग्मेटिज्म होना एक बड़ों में तो कॉमन है, लेकिन यंग लोगों में इट्स अ काइंड ऑफ अलार्मिंग साइन। तो we end up our discussion here. So we will discuss the astigmatism, predictive error, the power cross next time inshallah. तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन। है अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन? तो ये 90 पे अगर आपने कहा प्लस हो तो वो विद द रूल हो, वो विद द रूल, 90 पे माइनस का और तो माइनस विद अगेंस्ट द। तो जो लीड्स हैं दोनों जब प्रेशर डालेंगे तो वो स्टीपर और फ्लैटर का कॉन्सेप्ट भी समझ लेना। आपने वॉलीबॉल की वो रग्बी की शेप बताई, दूसरा फ्लैट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैटर? कर्व कम हो जाएगा, कर्व कम हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीपर? कर्व थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ बोथ अपर एंड लोअर लेट्स हिस्टोरिकली इज थॉट टू increase the steepening of the cornea, giving rise to with the rule astigmatism. तो इसलिए हम आपको पता है कि this is how you decide your toric lenses. अभी आप बायोमेट्री करेंगे तो now you will be understanding your biometries more. We are always finding out कि वो जो K रीडिंग है, जहाँ पे K रीडिंग ज्यादा आ रही है जिस एक्सिस पे, वो स्टीपर मेरिडियन है। तो अगर आप उसको कहते हैं ना डुअल इंसियन से या इंसियन से करेक्ट करना, तो वो इंसियन आप जहां पे लगाएंगे वो आपका इंसियन थोड़ी सी फ्लैटनिंग इंड्यूस करेगा। जितना बड़ा कॉर्नियल इंसियन होगा उतनी ज्यादा फ्लैटनिंग करेगा,
3.2 मिलीमीटर का NCN 2.75 से ज्यादा फ्लैटन करेगा कॉर्निया को। 5.5 मिलीमीटर का कट 2.75 से ज्यादा फ्लैटनिंग पैदा करेगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास स्टीपर मेरिडियन है और फर्क है, तो आप इंसिजन के जरिए उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप अपना इंसिजन कहाँ लगाएंगे? स्टीपर मेरिडियन पे। तो फिर ट्रांसपोजिशन की अहमियत हो गई ना, कि अब अगर आपको फ्लैटर मेरिडियन का ही पता है तो आप पता करना चाहते हैं इंसिजन कहाँ लगाऊं, तो यू विल लाइक टू नो कि इसका स्टीपर कौन सा है, तो आप कैसे पता करेंगे? भाई ट्रांसपोजिशन, अगर रिफ्रैक्शन से पता करना हो तो केरेटिन के केरेटोमेट्री तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना कॉर्नियल पावर की, वो जो ट्रू वैल्यू होती है डायोप्टर्स में। तो आज जब बायोमेट्री करेंगे तो आप गौर से देखना सबकी, और देखना कि स्टीपर मेरी कैसे हैं, और ज्यादा लोगों का स्टीपर मेरिडियन कहाँ पे आ रहा है और फ्लैटर कहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज अनदर क्लिनिकल एप्लीकेशन फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। तो अब्दुल्ला का बहुत फायदा है, being a first year resident, he asks many questions on your behalf, and your seniority remains unexposed. कि आपका कॉन्सेप्ट भी और मेरा भी क्लियर कर देता है वो रोक के, दैट्स गुड। और तो स्टीपर और फ्लैटर का कॉन्सेप्ट आ गया, स्टीपनेस कैसे इंड्यूस हुई विद द रूल अगेंस्ट द रूल, और ट्रांसपोजिशन को हमने एक दफा फिर थारोली देख लिया और एक बिगिनर के एंगल से भी देख लिया। बहुत सारी चीजें हम बड़ी सादगी से डिस्कस करते हैं। हमारी ये जो डिस्कशन, अगेन थैंक्स टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डॉक्टर स्टीवन बी फ्लिन MD, that we are able to go in depth and what's actually going on. तो सिंपल ट्रांसपोजिशन तो ये है कि ऑटो रेफ की पर्ची पकड़ी, दोनों को जमा किया, तो वो जो नेट आई अलामत वो उसका स्फीयर बन गया, सिलेंडर का साइन बदला और एक्सेस या 90 प्लस कर दिए या 90 माइनस कर दिए, तो वो आपकी नई इक्वेशन आ गई। लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है? नाउ अब्दुल्ला अंडरस्टैंड्स बेटर देन मी, एटलीस्ट ही answered correctly about compound and mixed astigmatism. So thank you. Please go ahead.